Hello, my dear friends. Welcome back once again to your favorite YouTube channel MBA वाला. MBA वाला. You all know that मेरे को बार बार बोलने की जरूरत नहीं है that this is one stop solution for all your requirements for the preparation of entrance examinations for management. A management entrance examination, beat CAT, beat other management entrance tests like SNAP, NARSI Munji, ZAT. You can trust on us that we'll be conducting plenty of sessions for all of you on the YouTube channel so that you will have a wonderful set of revision, right? So friends, continuing to this series, CAT में तो हम बहुत सारे sessions करते ही रहते हैं, right? Now continuing to this series, the sessions for NARSI Munji 2025. So in the previous 3 sessions that I have taken for you, for logical reasoning, we have seen different types of questions that may appear in the logical reasoning section of NARSI Munji exam, right? Now, these questions varied starting from questions of series, coding, decoding, blood relations, direction senses, input-output sequences is one very important topic from the point of view of NMAT logical reasoning. Now friends, today in this session we are going to do something different. कुछ अलग करने वाले हैं. हम logical reasoning नहीं देखेंगे because already हम 3 sessions में logical reasoning देख चुके हैं and we are yet to look at this particular element, data interpretation. Though you will not find the section of LR combined with data interpretation in NMAT. NMAT में data interpretation logical reasoning के साथ नहीं आता. But since I am a faculty who has been teaching you logical reasoning as well as data interpretation, so it is my responsibility कि भाई data interpretation अगर NMAT के एग्जाम में आता है, be it in any section, ठीक है, चाहे क्वांट में आए, चाहे लॉजिकल रीजनिंग के साथ आए, चाहे वर्बल आरसी में वो डीआई के क्वेश्चंस पूछ लें. वैसे वर्बल आरसी में ऑब्वियसली डीआई के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट किसी भी सेक्शन में हो, सिंस इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी to help you with data interpretation. So in this session, we will be solving different sets on data interpretation. थोड़ा सा level of difficulty high रखा है मैंने, ठीक है. नारसी मुंजी एग्जाम में जो आज आप डिफिकल्टी लेवल देखने वाले हो, इससे थोड़ा सा लो ही लेवल ऑफ डिफिकल्टी मिलेगा, बट स्टिल you will be well prepared to tackle all the questions in NMAT exam, right? Now before I start, मैं बता देता हूं DI के जो क्वेश्चंस आते हैं, you will find the questions of DI in the quant section. So QA plus DI ये combined होता है, logical reasoning अलग section होता है, verbal RC अलग section होता है, right? Fine. So let's begin with solving the most important questions of logical reasoning and data interpretation. Today we are taking data interpretation, and this is part number 4 of the lectures that I have been taking for all of you. So first set information, ये complete information है. मैं आपको 2-3 मिनट दे रहा हूं इस इंफॉर्मेशन को देखने के लिए, ठीक है. नाउ आपके पास एक और फैसिलिटी है, सिंस दिस सेशन यू नो दैट दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन, तो आप पॉज भी कर सकते हो वीडियो एंड यू कैन डू द सेल्फ एनालिसिस ऑफ दिस डेटा बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस. चलो तो ऐसा करते हैं, आप लोगों को यही करना है, ठीक है. सो डेटा आपकी स्क्रीन पे है, आप इस डेटा को एनालाइज करो, tabulate this data which is given in the form of line graph, bar graph, इन दोनों को टेबल में कन्वर्ट करो, and then next slide पे I'm going to display 5 questions based on this set. 5 questions हैं, उन questions के answers खुद से निकालो and then look at the explanation that I'll be giving you just to check your answers. ठीक है. So थोड़ा सा इफेक्टिव बनाते हैं इस सेशन को, ठीक है ना. आप क्या करते हो, हर बार जो भी मैं आपको बता रहा हूं आप सिर्फ सुनते जाते हो, खुद से ज्यादा सॉल्विंग नहीं कर पाते हो, ठीक है. बट इस सेशन में आपको क्या करना है, आपको खुद के एफर्ट्स ज्यादा लगाने हैं रेदर देन टेकिंग माय हेल्प फॉर ईच एंड एवरीथिंग, राइट. तो आपको क्या करना है, एनालाइज करो डेटा को, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो एंड देन कंटिन्यू विद द वीडियो एंड लुक एट द सॉल्यूशंस. और अगर आपके पास आंसर्स हैं तो आप आंसर्स डायरेक्टली चेक करो, ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड करके. तो आंसर्स अगर आपके सही आ रहे हैं एंड यू थिंक दैट यू हैव यूज्ड एफिशिएंट मेथड ऑफ सॉल्विंग, तो सही है. बट I'll be solving each of these questions using the most efficient method, the shortest possible way, जिसमें ज्यादा रफ वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, कम एफर्ट्स लगेंगे एंड आंसर जल्दी से आएगा.
So over to all of you. This is the complete information. I'll read it for you. The line graph illustrates the percentage distribution of health insurance policies sold by 5 companies in the year 2024. So percentage distribution दिया हुआ है 5 companies का. नीवा बूपा 10%, केयर हेल्थ 15, टाटा AIG 20%, आदित्य बिरला हेल्थ 30% एंड स्टार हेल्थ 25%. अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, सो एनालिसिस थोड़ा सा मैं साथ साथ भी कर देता हूं. एक इंपॉर्टेंट चीज है, आर दीज ओनली 5 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज इन द ईयर 2024 या फिर इनके अलावा भी कोई और कंपनी हो सकती है? वो कैसे पता चलेगा? परसेंटेज ये जो है इनको ऐड करोगे. इफ दिस परसेंटेज कम्स आउट टू बी 100%, फाइन, दीज आर द ओनली 5 कंपनीज. गिवन नहीं है यहां पे कहीं, बट खुद का भी तो हम दिमाग लगाएंगे ना. सो इन सबको अगर मैं ऐड करता हूं 100% आ जाता है, तो दीज आर द ओनली 5 कंपनीज. अगर 100% से कम आता है, then that means there may be other companies other than these 5 companies. ये चीज हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ एनमैट के लिए नहीं. ये जो ज्ञान दिया है ना मैंने, ये हर एग्जाम में लगेगा. कैट में भी ये बहुत छोटी सी चीज है, बट हमें ध्यान देना पड़ेगा. सो 10 and 15, 25, 45, 75 and 100% is total. So that means we are clear कि भाई यही 5 कंपनीज हैं, इनके अलावा और कोई कंपनी नहीं है. ठीक है जी. अब बार ग्राफ एट द बॉटम. The bar graph depicts the percentage distribution of health insurance policies sold by 5 companies across 4 quarters of 2024. So that means नीवा बूपा ने जितनी भी पॉलिसी सेल की हैं, ठीक है, अभी आएंगे उस पे. नीवा बूपा ने जितनी भी पॉलिसी सेल की हैं, 45% आर सोल्ड इन क्वार्टर वन विद ब्लू कलर. देन 45 से लेके 80, दैट मींस 35% आर सोल्ड इन क्वार्टर टू. 80 से लेके 95, 15% इन क्वार्टर थ्री एंड 5% इन क्वार्टर फोर. टोटल 100% सबके लिए दिख ही रहा है. सो दिस इज क्यूमुलेटिव बार ग्राफ जो यहां पे गिवन है, राइट? सो नाउ these are the policies, percentage breakup of the policy sold by 5 companies. and फिर जितनी भी policies है उनका quarter wise भी breakup किया हुआ है. The total number of policies sold by these companies is given as 4 lakhs. So this is what you have as the data. ठीक है. अब I am displaying 5 questions. So these are the 5 questions for all of you. ठीक है. आई एम वेटिंग हियर फॉर 30 सेकेंड्स. आप क्या कर सकते हो, जैसा मैंने बताया है, वीडियो पॉज करके आप ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद द वीडियो. ऑलराइट, ठीक है. नाउ आई रिपीट वंस अगेन, आई विल बी गिविंग यू द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस. सो इट विल बी गुड इफ यू विल वॉच द एंटायर वीडियो. ठीक है, एटलीस्ट द फर्स्ट पोर्शन, द इनिशियल पोर्शन ऑफ द एनालिसिस दैट आई विल बी डूइंग. All right, so I'm starting with the analysis. Now, first of all, I'll analyze all these 5 questions. First question is talking about the ratio. Second question, how many times the company recorded a decline in the policies, okay, as compared to the previous quarter. In which quarter was the highest number of policies sold? Number of policies नहीं निकालना, highest number बताना है कौन से quarter में है. Fine. Which company sold the most policies? अगेन विल डोंट हैव टू फाइंड नंबर ऑफ पॉलिसीज, बट ये बताना है कि कौन सी कंपनी ने सबसे ज्यादा पॉलिसी सेल की है. इन हाउ मेनी क्वार्टर्स डिड एनी 2 और मोर कंपनीज सेल द सेम नंबर ऑफ पॉलिसीज. अगेन नंबर डिटरमाइन नहीं करना, हमें देखना है कि कौन से केसेस में नंबर ऑफ पॉलिसीज इक्वल है, राइट? सो आई कैन से दैट इन ईच ऑफ दीज 5 क्वेश्चंस, none of the question is asking us to calculate the exact number of policies. ऑप्शन भी देख सकते हो, कहीं पे भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ पॉलिसीज नहीं फाइंड आउट करना, हर जगह पे कंपैरिजन है. रेशियो, हाउ मेनी टाइम्स रिकॉर्डेड अ डिक्लाइन भी कंपैरिजन होगा प्रीवियस के रिलेशन में. हाईएस्ट फाइंड आउट करना है तो कंपेयरिंग ऑल ऑफ देम. देन मोस्ट नंबर ऑफ पॉलिसीज, अगेन हाईएस्ट कंपेयर करना है. देन इन हाउ मेनी क्वार्टर्स डिड एनी 2 और मोर कंपनी सोल्ड द सेम नंबर ऑफ पॉलिसीज, अगेन कंपैरिजन. Every question is asking for comparison. So I'll save my time and will not run. I'll not run behind what? The number of policies.
नंबर ऑफ पॉलिसी जो 4 लाख गिवन था ना आपको, यहां पे ये 4 लाख, इसका कोई यूज नहीं होगा पूरे क्वेश्चन में, राइट? सो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले 4 लाख को परसेंटेजेस में डिवाइड करेंगे, 5 परसेंटेजेस में। 10% will be 40%, 15% will be 60%, 20% will be 80,000 परसेंट बोल रहा हूं मैं, 80,000, देन 30% will be 1,20,000, 25% will be 1 लाख। जरूरत ही नहीं है, ठीक है? हाँ, बिकॉज अब मैं इसका एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, बिकॉज 4 लाख की जगह अगर मैं यहां पे गंदा सा नंबर दे देता 3.86 लैक्स, 3,86,000, समझ रहे हो ना कितनी बुरी हालत होती हमारी इनको नंबर्स में कन्वर्ट करने की। सो आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट ये जो नंबर ऑफ पॉलिसीज है, दिस विल नॉट मैटर until and unless any question is asking about finding the exact number of policies, not the comparison but the number of policy, और वो हमें आंसर में मार्क करना है, ठीक है ना, राइट? तो इसलिए 4 लाख हो या कोई भी नंबर हो, बिना इस नंबर के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे अब देखते हैं। सो एक टेबल बना लिया मैंने, 5 कंपनीज, ठीक है, एंड 4 क्वार्टर्स फॉर ईच कंपनी। नाउ लेट्स स्टार्ट फीडिंग अप द वैल्यूज वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अज्यूम कर रहा हूं दैट टोटल नंबर ऑफ पॉलिसीज 4 लाख की जगह 100x, 100 भी अज्यूम कर सकते हो बट x आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए लगा रहा हूं मैं। सो टोटल नंबर ऑफ पॉलिसीज सोल्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लाइन ग्राफ, इसका 100x इज द टोटल नंबर ऑफ पॉलिसीज सोल्ड। अब 100x को मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। 10% विल बिकम 10x, 15% 15x, आप x लिख दो, मैं x अब अवॉइड कर रहा हूं बिकॉज मैंने क्या बोला था, मोस्ट एफिशिएंट मेथड, तो मैं x को अवॉइड कर रहा हूं, आई विल नॉट कंसिडर x, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ पॉलिसीज 100, 15 के बाद 20, 30, सो दिस इज 20, दिस इज 30 एंड दिस इज 25, ठीक है? अब ये जो 10 पॉलिसीज हैं, ये एक आई वुड से एक नंबर है, रेफरेंस नंबर है, ठीक है? हाँ, अब ये जो 10 पॉलिसीज हैं या फिर टोटल नंबर ऑफ पॉलिसीज नीवा बुपा ने जो सेल किया है, क्वार्टर वाइज इसकी परसेंटेज लिख देते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर में 45%, देन 35%, 15%, 5%, डन। फॉर केयर हेल्थ 30% and then 5 and then 15, so 30, 5, 15 एंड ये होगा 50%। टोटल तो सम 100% आना ही चाहिए, डन, ये भी हो गया। अब आता है टाटा AIG। सो पहला है 25%, देन 15, लास्ट वाला है 20% एंड 40, ये होना चाहिए 40%। चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 40%। मेरे बहुत पास है ना ये, तो मुझे काउंट करने में दिक्कत हो रही है। अगर मैं सामने से देखूंगा तो मेरे को कन्वीनियंस हो जाएगा, राइट? सो दैट्स व्हाई। AB आदित्य बिरला 1 2 3 15%, 1 2 3 4 5 6 30%, 1 2 3 4 20%, एंड 35 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 35%। ऑल राइट, लास्ट वन 20%, 25%, 25%, and this should be 30, absolutely 30%. So now the table is made. अब टेबल बनाने में हार्डली आपको 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, एंड देन 5 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन में 1-1 मिनट, आराम से ये सेट पूरा का पूरा सेट 6 to 7 मिनट्स में टैकल हो सकता है, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस में आपको 30 सेकेंड्स लगेंगे, कुछ क्वेश्चंस में आपको 1 मिनट लगेगा। फाइन, देखते हैं कहां पे कितना टाइम लगेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं,
आई एम कॉपिंग दिस टेबल, मैं इस टेबल को पूरा का पूरा टेबल को कॉपी कर रहा हूं, राइट, विद एवरी क्वेश्चन, सो गिव मी अ फ्यू सेकेंड्स, राइट। सो आई हैव कॉपीड दिस टेबल, जो हमने अभी टेबल बनाया है, मैंने हर एक क्वेश्चन के साथ यहां पे कॉपी कर लिया है। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग यूजिंग द मोस्ट एफिशिएंट मेथड। क्वेश्चन नंबर 1, यू ऑल कैन पोस्ट योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से। रिकॉर्डेड वीडियो है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लाइव नहीं देख रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आंसर जरूर पोस्ट करो चैट बॉक्स में, तभी मजा आएगा, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पॉलिसी सोल्ड बाय आदित्य बिरला इन Q3? सो Aditya Birla in Q3 to those sold by Care Health in Q1. अब बेस तो सबका सेम ही है ना, 100x से स्टार्ट किया था तो x, तो अब कोई टेंशन नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कंपैरिजन कर सकते हो। सो आदित्य बिरला इन Q3, सो आदित्य बिरला इन Q3, यहां पे 20%, सो 20% ऑफ 30, 20% ऑफ 30, राइट। इसका रेशियो किसके साथ चाहिए? केयर हेल्थ इन Q1, केयर हेल्थ इन Q1 विच इज 30% ऑफ 15, राइट। अब एक चीज बताओ, परसेंटेज ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से कैंसिल हो जाएगा, हटा के सीधा 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 15। अगर ये अंडरस्टैंडिंग पहले से है तो ये वाला स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं थी, हम डायरेक्टली इस वाले स्टेप पे जा सकते थे, राइट। 30 से 30 कैंसिल, 20/15 दैट इज 4/3, 4/3 ऑप्शंस में से सेलेक्ट कर लो, ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोबारा से बता रहा हूं, ये परसेंटेज ऑफ यूजलेस है बिल्कुल। आप डायरेक्टली 20 और 30, आप डायरेक्टली इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिकॉज आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो हर केस में अब हम ये चीज भी यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन डन, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया है कितना? ऑप्शन ए 4:3। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डिड एनी कंपनी, कंपनी वाइज देखना है, रिकॉर्ड अ डिक्लाइन इन पॉलिसी सेल्स कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर? तो कंपनी को उसके प्रीवियस क्वार्टर से ही कंपेयर करना है, तो डिक्लाइन देखना है। यहां पे 45 से 35 देयर इज अ डिक्लाइन, तो एक बार हो गया। सो लेट्स कीप काउंटिंग, 1 हो गया। 35 से 15% दोबारा से डिक्लाइन हुआ, दो इंस्टेंसेस आ गए। 15 से 5% दोबारा से डिक्लाइन हुआ, 3 इंस्टेंसेस आ गए, राइट। 30 से 5 फोर्थ इंस्टेंस, 5 से 15 इंक्रीज हुआ है, डिक्लाइन नहीं है, सो नॉट देयर, अगेन नॉट देयर, फाइन, तो 4 इंस्टेंसेस। 25 से 15 दिस इज फिफ्थ इंस्टेंस, ठीक है। 15 से 40 नहीं, 40 से 20 यस, सिक्स्थ इंस्टेंस, तो 6 हो चुके हैं अभी तक। इंक्रीज नॉट कंसिडर्ड, डिक्रीज यस, 7 इंस्टेंसेस। 20 से 35 नो, 7 हो चुके हैं अभी तक। 20 से 25 इंक्रीज हुआ है, सेम इंक्रीज, सो लास्ट कंपनी के लिए कोई भी इंस्टेंस नहीं होगा। सो टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितने हैं? यहां पे देयर वर 3 इंस्टेंसेस, यहां पे देयर वर 2 इंस्टेंसेस, यहां पे 2 इंस्टेंसेस, यहां पे 1 सेकेंड, 1 2 3 1, नो यहां पे 2 नहीं है, यहां पे एक ही था, ठीक है। हम 7 तो काउंट कर ही चुके हैं, और यहां पे भी एक, सो 3 4 5 6 7, सो इट हैज हैपेंड 7 टाइम्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन विच क्वार्टर वाज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉलिसीज सोल्ड? अब ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा। क्वार्टर, सो Q1 में नंबर ऑफ पॉलिसीज, Q1 45 इंटू 10, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करूंगा, कंपैरिजन करना है। 45 इंटू 10 450, 35 सॉरी 30 इंटू 15 450, 25 इंटू 20 500, 15 इंटू 30 450, 20 इंटू 25 500, so 500 500,000 and 1350,
सो 2350 इज इन क्वार्टर 1। अब बस यही चीज हर एक क्वार्टर के साथ रिपीट करनी है। सो क्वार्टर 2 35 इंटू 10 350, 75, 15 into 20 300, 30 into 30 900, and 25 into 25 625. So 600, 1200, 2100, 2200, 2250 ये कम है, नहीं लिख रहा है, इसको यूज ही नहीं कर रहा मैं। क्वार्टर 3 150, 225, 40 into 20 800, a big number that will increase the sum. 20 into 30 600, and then 25 into 25 625. So 1200, 2000, 2300, 2400 उस वाले से ज्यादा है, लिख देते हैं। लास्ट क्वार्टर 50, 750, 20 into 20 400, 35 into 30 ये एक बड़ा नंबर बनेगा 1050, एंड देन 30 into 25 750 ये भी एक बड़ा नंबर है। 750 एंड 750 1500 एंड 1000, तो ये तो बड़ा होगा ही होगा, ये इन दोनों नंबर से, इनफैक्ट तीनों नंबर से बड़ा होगा। आई एम नॉट गोइंग फॉर एग्जैक्ट कैलकुलेशन, ये चीज सीखो। एग्जैक्ट नंबर का फायदा नहीं है कैलकुलेट करने का, टाइम वेस्ट होगा। क्लियरली दिख रहा है प्रीवियस 3 वैल्यू से बड़ा है, आंसर मार्क कर सकते हैं क्वार्टर 4। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंपनी सोल्ड द मोस्ट पॉलिसीज इन Q2? Q2 में मोस्ट पॉलिसीज, अब Q2 में मोस्ट पॉलिसी कौन सी कंपनी, अब ये डेटा हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो Q2 के नंबर्स मेरे पास हैं, मोस्ट नंबर ऑफ पॉलिसीज यहां पे है 900। दिस इज विद द फोर्थ कंपनी इन द लाइन। सो फोर्थ कंपनी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, AB, राइट। सो इन द थर्ड क्वार्टर, सॉरी इन द सेकंड क्वार्टर 330 इंटू 30 900 ये सबसे बड़ा नंबर है। सो यहां पे क्वार्टर 2 का नंबर था 30 इंटू 30, ये सबसे बड़ा नंबर होगा। दिस इज फॉर आदित्य बिरला हेल्थ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में हार्डली 10 सेकेंड्स लगेंगे बिकॉज काम पहले ही कर चुके थे। प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, 1 मिनट 1.5 मिनट, बट ये वाला क्वेश्चन उसको कंप्लीटली कॉम्पनसेट कर देगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। In how many quarters did 2 or more companies sell the same number of policies? कितने क्वार्टर में, in how many quarters did 2 or more companies sell the same number of policies? Okay, so थर्ड क्वेश्चन पे वापस चलते हैं, मार्क करते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में 3 companies sold the same number of policies, तो फर्स्ट क्वार्टर इज टेकन। सेकेंड क्वार्टर में कोई भी नंबर सेम है, सारे के सारे डिफरेंट हैं, नॉट इन सेकेंड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर में कोई भी नंबर सेम है, ऑल नंबर्स आर डिफरेंट, नॉट इन थर्ड क्वार्टर। फोर्थ क्वार्टर एनी नंबर सेम, यस, 750 एंड 750, दीज टू नंबर्स आर सेम। So fourth quarter maybe 2 or more companies have sold the same number of policies. So it has happened in first quarter that 3 companies have sold equal and these 2 companies have sold equal. So yes, it has happened in quarter 1 and it has happened in quarter 4. अब इसका आंसर क्या मार्क करेंगे, 2 मार्क करेंगे या फिर 3, बिकॉज ये वाला एक इंस्टेंस, ये वाला एक इंस्टेंस और ये वाला एक इंस्टेंस। क्वेश्चन में पूछा इन हाउ मेनी क्वार्टर्स, सो क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 4 2 क्वार्टर्स। सो 2 क्वार्टर्स में ऐसा हुआ है, कहां गया, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, फाइन। So friends, these are all the 5 questions of this set. Now let's move on to the second set of the day. Now friends, let's move on towards our next set. Next set की तरफ चलते हैं। Next set will not be purely a DI set. ठीक है, we'll have to fill in the table. Missing data का क्वेश्चन है ये, एंड यस अ वंडरफुल सेट। बहुत सारी लॉजिकल रीजनिंग भी अप्लाई होगी, सो इट्स अ कॉम्बो ऑफ
logical and data, right? ठीक है, so let's look at the next set, the next 5 questions on your screen. So I'll give you a minute, आराम से देखो and use the same method. आराम से इसको pause करके वीडियो को solve करो and find out the ranks of each and every student. So midterm ranks missing है, final exam ranks all are given, and the students 4 names are also missing here, as you can see, right? So you will have to fill in this missing table using the data that is given on your screen. All right, friend. Now I am sure that all of you must have read the data, fine, given yourself ample amount of time, right? So now let's have a look at the 5 questions. I'll display the 5 questions to all of you so that once you have solved it, you can mark all the answers, all the 5 answers for this. Okay. So mark all the 5 answers and then we will start with the analysis. Analysis करेंगे, definitely करेंगे. But I want to give each and every one of you a chance to mark the answer by yourself for each of these 5 questions. उसके बाद हम analysis करेंगे and we'll see कौन सा question correct है आप लोगों का. All right, people. So you have taken enough amount of time. अब हम analysis करते हैं इस set का. Okay. So let's see how to tackle this entire set. I will read all the information one by one. Let's understand कि इस set में हो क्या रहा है. What is the like structure? What is the soul of this set? Now, midterm exam and final exam, and the ranks are defined for these 10 students. So Radhika, a teacher, was compiling the result of her 10 students. So 10 ही students हैं, उससे ज़्यादा students नहीं हैं. Mehak, Gagan, the names are given. Okay, now she prepared a table showing their ranks in the midterm and the final exams. Exactly 5 students improved their ranks in the final exam. So exactly 5 students improved their ranks in the final exam as compared to the midterm exam. 5 student की ranks improve हुई हैं. अब वो 5 कौन से students हैं जिनकी rank improve हुई हैं? The names are not given, but still from the table I can find out कि out of these 5, if I can find out 4 or 3 or whatever number, let's see. Now Rubina, who was rank 3, now is rank 1. Rubina has improved her rank. ठीक है? So one of them is Rubina. Vivek possible हो सकता है. If Vivek has let's say rank 4 से rank 2 पे आ गया, right? तो Vivek possible हो सकता है. छोड़ देते हैं. Gagan rank 2 से rank 3, Gagan has not improved the rank. Arman possible हो सकता है because this rank is not given. Then Shruti rank 4 से rank 5, no improvement. ये तो like decrement हो गया, ठीक है? And then नहीं पता. तो exactly 5 students have improved. Now point number 1 अगर आप study करोगे, read करोगे, तो point number 1 में उन 5 students के नाम भी दे दिए हैं. So point number 1 says that the students who improved their ranks did so in the following increasing order of improvement. So improvement कितने से किया है ये भी पता है हमें, right? So अगर मैं रुबीना का देखता हूं, रुबीना 3 से 1 पे गई है, तो improvement is by 2 ranks. अब ये बोल रहा है कि these 5 students have improved their ranks in increasing order of improvement. राइट अब यहां पे रुबीना का तो मुझे पता है, रुबीना ने 2 से इंक्रीज किया है अपनी रैंक को, ठीक है? 2 से इंप्रूव किया है रुबीना ने. नाउ द इंक्रीजिंग ऑर्डर इज राहुल, रुबीना, अरमान, तान्या एंड विवेक. सो राहुल का जो इंप्रूवमेंट है सबसे कम है, देन रुबीना, देन अरमान, देन तान्या एंड देन विवेक. विवेक का इंप्रूवमेंट सबसे ज्यादा है. सो सिंस राहुल का इंप्रूवमेंट रुबीना से कम होना चाहिए एंड इंप्रूवमेंट है तो मिनिमम इंप्रूवमेंट तो 1 से तो होगा ही, तो राहुल विल इंप्रूव हिज रैंक बाय 1. ठीक है? बट अनफॉर्चुनेटली राहुल अभी गिवन नहीं है टेबल में, तो हम राहुल को फिल नहीं कर सकते. आगे चलते हैं. दे आर सेइंग दैट रुबीना हैज इंप्रूव्ड. दे आर आल्सो सेइंग दैट अरमान ने इंप्रूव किया है. सो अरमान टेबल में है, सो अरमान हैज इंप्रूव्ड. तान्या हैज इंप्रूव्ड व्हिच इज आल्सो इन द टेबल, and then Vivek has improved. Vivek is also in the table. So these 4 students plus Rahul, 5 students have improved their ranks in the increasing order. ठीक है?
अब ऑर्डर पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ना। राहुल हैज इंप्रूव बाय 1, रुबीना हैज इंप्रूव बाय 2, इतना तो समझ में आ चुका है। अरमान, अब अरमान की जो इंप्रूवमेंट है वो 2 से ज्यादा होगी, तो मिनिमम अरमान की जो इंप्रूवमेंट है वो कितने की होगी? मिनिमम 3 की होगी। सो मिनिमम 3। अब मैक्सिमम 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, बट मैक्सिमम इंप्रूवमेंट 10 तो इंप्रूवमेंट हो ही नहीं सकती, डिफरेंस 10 का तो हो ही नहीं सकता, राइट? बिकॉज उसके लिए हमें कम से कम 11 रैंक्स चाहिए। यहां पे 10 का भी इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, बिकॉज फिर तान्या कैसे इंप्रूव करेगी? सो यहां पे 9 का भी इंप्रूव नहीं हो सकता, 8 का भी इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, बिकॉज 8 का इंप्रूवमेंट होगा तान्या का 9 और फिर विवेक का 10। 10 का तो इंप्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है, राइट? तो अरमान का मैक्सिमम इंप्रूवमेंट 7 से ही हो सकता है, ताकि इनका 8 और 9 से इंप्रूवमेंट हो जाए। ठीक है, जस्ट कहने की बात है। अरमान की रैंक कितनी है अभी? अरमान इज सिटिंग एट रैंक नंबर 4। अगर इसका मिनिमम इंप्रूवमेंट 3 रैंक्स से है तो इसकी यहां पे मिनिमम रैंक 7 होगी। 7 से 4 पे चला गया तो 3 का इंप्रूवमेंट आ गया, या फिर इसकी रैंक 8 हो सकती है, या फिर 9, या फिर मैक्सिमम 10 हो सकती है इसकी रैंक। ठीक है ना? तो अरमान का मिनिमम इंप्रूवमेंट 3 का होगा। तान्या पे चलते हैं। तान्या का मिनिमम इंप्रूवमेंट कितने का होगा? तान्या 3 का तो इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, बिकॉज अरमान का होगा मिनिमम 3। तो तान्या का मिनिमम इंप्रूवमेंट 4 का होगा। तान्या का मिनिमम इंप्रूवमेंट 4, तान्या इज सिटिंग एट रैंक नंबर 6। तो तान्या अगर 4 से इंप्रूव करती है, दैट मींस उसका ओरिजिनल रैंक कितना था? ओरिजिनल रैंक 10 था। 10 से 6 पे आ गई, इंप्रूवमेंट कितने का हुआ? 4 का। क्या तान्या का इंप्रूवमेंट 5 का हो सकता है? अगर तान्या को 5 रैंक्स का इंप्रूवमेंट चाहिए तो इसको यहां पे रैंक नंबर 11 लेके आना पड़ेगा। 11 माइनस 6 इज 5। 5 से इंप्रूवमेंट हो गया, बट 11th रैंक तो पॉसिबल ही नहीं है ना। 10 स्टूडेंट्स हैं, 11th रैंक पॉसिबल नहीं है। सो दैट मींस तान्या का मिनिमम इंप्रूवमेंट 4 और मैक्सिमम इंप्रूवमेंट भी 4 का ही हो सकता है। सो ये सर्टेन हो गया कि तान्या का इंप्रूवमेंट 4 का ही होगा, राइट? सो तान्या विल इंप्रूव हर रैंक बाय 4। दैट मींस तान्या का यहां पे जो रैंक होगा that will be rank number 10 and improvement of 4। ओके, प्लस 4 लिख दिया मैंने। 10 माइनस 4 होता है वैसे तो 6, बट इंप्रूवमेंट शो कर रहे हैं, तो रैंक वाइज जितनी कम रैंक होगी उतना बेटर है ना, न्यूमेरिकली लो वैल्यू। तो ये प्लस मींस इंप्रूवमेंट। ठीक है, अब क्योंकि तान्या का इंप्रूवमेंट 4 का है तो अरमान का इंप्रूवमेंट 4 से तो कम ही होना चाहिए, बिकॉज दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो अरमान का इंप्रूवमेंट 3 का हो जाएगा। सो अगर अरमान का इंप्रूवमेंट 3 है, राइट, इफ अरमान हैज इंप्रूव्ड हिज रैंक बाय 3, सो अभी रैंक 4 है तो दैट मींस मिड टर्म में रैंक 7 होगी एंड इंप्रूवमेंट ऑफ 3। परफेक्ट। अब आते हैं विवेक पे। तान्या का इंप्रूवमेंट 4 है तो विवेक का इंप्रूवमेंट 4 से तो ज्यादा ही होगा। दैट मींस 5, 6, 7 कितने का भी हो सकता है। विवेक की रैंक चेक करते हैं। सो विवेक की रैंक है 2। ओके, सो अगर उसका इंप्रूवमेंट 5 से होता है तो दैट मींस उसकी रैंक होनी चाहिए 7, बट 7 रैंक तो ऑलरेडी अरमान के पास है, नॉट पॉसिबल। अगर मैं इंप्रूवमेंट 6 का लेता हूं तो उसकी रैंक 8 हो सकती है, विच इज पॉसिबल, अवेलेबल है। उसकी रैंक 9 भी हो सकती है, विच इज ऑल्सो अवेलेबल। रैंक 10 नहीं हो सकती, बिकॉज रैंक 10 इज टेकन बाय तान्या। सो दैट मींस विवेक की मिड टर्म में रैंक 8 या 9 हो सकती है। दैट मींस विवेक का इंप्रूवमेंट या तो 6 का होगा या फिर 7 का होगा। बोथ आर एब्सोल्युटली फाइन, बोथ आर मोर देन तान्याज इंप्रूवमेंट, विच इज फाइन। सो विवेक का इंप्रूवमेंट आइदर 6 और 7, यहां पे लिख देता हूं। परफेक्ट, इतना समझ में आ गया यहां तक। फर्स्ट पॉइंट ही रीड किया है, उससे इतनी सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई है। ओके, आगे चलते हैं। अभी मुझे राहुल नहीं पता यहां पे कौन है, सो लास्ट 4 में से राहुल एक हो सकता है। चेक करते हैं राहुल कौन कौन हो सकता है। राहुल हैज इंप्रूव्ड हिज रैंक बाय 1। सो अगर यहां पे 10 है तो इधर 11 पॉसिबल नहीं है, सो दिस पर्सन कैन नॉट बी राहुल, राइट? 9 रैंक है
राहुल ने 1 से इंप्रूव किया है तो यहां पे रैंक 10 होनी चाहिए राहुल की, बट रैंक 10 तो ऑलरेडी टेकन है, तो दिस पर्सन ऑल्सो कैन नॉट बी राहुल। रैंक 8 तो रैंक 9 ओरिजिनली हो सकती है, रैंक 9 अवेलेबल है, विवेक की रैंक 8 या रैंक 9 में से एक हो सकती है, तो ये वाला पर्सन राहुल हो सकता है। रैंक 8 से 7 इंप्रूवमेंट ऑफ 1, ये पर्सन भी राहुल हो सकता है। सो अब यहां से मैंने डिड्यूस किया कि भाई राहुल इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, तो मैं यहां पे राहुल राहुल लिख देता हूं कि इन दोनों में से कोई भी एक पर्सन राहुल हो सकता है, लास्ट वाले 2 राहुल डेफिनेटली नहीं हो सकते। ठीक है, चलो अब और आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट रीड करते हैं। सेकंड पॉइंट बोल रहा है दैट रोहन एंड महक ड्रॉप्ड बाय द सेम नंबर ऑफ पोजीशंस। अब रोहन एंड महक तो मुझे पता ही नहीं यहां पे कौन है, दे ड्रॉप बाय द सेम नंबर ऑफ पोजीशन, छोड़ते हैं। वाइल मिथिला रिकॉर्डेड द मैक्सिमम फॉल लूजिंग 7 पोजीशंस, मिथिला ने 7 पोजीशंस लूज की हैं। ओके, सो मिथिला हैज लॉस्ट 7 पोजीशंस, मतलब मिथिला की रैंक पहले बेटर थी, अब रैंक खराब हो गई। क्या ये पर्सन मिथिला हो सकती है? अभी रैंक 7 है तो पहले रैंक 0 होनी चाहिए, 0 से 7 लॉस्ट 7, 0 रैंक तो पॉसिबल नहीं है, हटा देते हैं। इफ आई अज्यूम दैट दिस इज मिथिला, तो ओरिजिनली यहां पे रैंक 1 होनी चाहिए थी, पॉसिबिलिटी है बिकॉज रैंक 1 इज नॉट टेकन। इफ दिस इज मिथिला तो यहां पे रैंक 2 होनी चाहिए, दैट्स व्हाई लॉस्ट 7 पोजीशंस, बट रैंक 2 is already taken, this cannot be Mithila. If I'll assume that this is Mithila, so यहां पे रैंक 3 होनी चाहिए, रैंक 3 is also taken, so this cannot be Mithila. तो मिथिला के लिए पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही है, रैंक 1 से रैंक 8। ओके, सो मिथिला पता लग गया हमें कौन है। So this person is Mithila and Mithila's original rank was 8, right? And sorry, original rank was 1, new rank is 8. Fine. अब this person is Mithila, that means this person cannot be Rahul. So राहुल कौन होगा? ऊपर वाला पर्सन जिसकी रैंक 7 है फाइनल एग्जाम में। सो राहुल का भी पता लग गया हमें कौन है, तो दिस पर्सन विल बी राहुल। ठीक है, लेट्स राइट। एंड राहुल हैज इंप्रूव्ड हिज रैंक बाय 1। सो अभी 7 है तो पहले कितनी थी? 8। सो अर्लियर द रैंक ऑफ राहुल वाज 8, नाउ देयर इज एन इंप्रूवमेंट ऑफ 1। Now, if rank 8 is here, rank 8 cannot be for Vivek. Vivek के लिए rank 8 नहीं हो सकती। तो that means originally Vivek की rank क्या थी? Rank 9. Vivek has improved by 7, now scoring rank number 2. So Vivek का improvement 7 से आया, ओके, एंड राहुल का इंप्रूवमेंट 1 से आया है। तो 1 2 3 4 प्लस 7, सो 5 पर्संस जिन्होंने इंप्रूवमेंट किया था। नाउ आई हैव ऑल दीज 5 पीपल विद अस। अब बचा क्या क्या है टेबल में? आई हैव ऑल द नेम्स हियर एक्सेप्ट द लास्ट 2, आई हैव ऑल द रैंक्स हियर एक्सेप्ट द लास्ट 2। ओके, राइट। तो अब लास्ट 2 रोहन और महक ही हो सकते हैं बिकॉज रोहन और महक का नाम ऊपर नहीं है। सो नाउ रोहन एंड महक ड्रॉप्ड बाय द सेम नंबर ऑफ पोजीशंस। अब ये जो 2 पर्सन बचे हैं, दे हैव ड्रॉप्ड बाय द सेम नंबर ऑफ पोजीशंस। ओके, अब यहां पे रैंक्स कौन कौन सी बची हैं? रैंक 5 इज लेफ्ट, रैंक 6 इज लेफ्ट। तो अगर मैं रैंक 6 यहां पे और रैंक 5 यहां पे फिल करता हूं, तो कितने से ड्रॉप हुआ? 3 से। यहां पे कितने से ड्रॉप हुआ? 5 से। सेम नंबर ऑफ रैंक्स से ड्रॉप नहीं है, सो दैट मींस 6 5 नहीं हो सकता। यहां पे मुझे 5 और 6 ही लिखना पड़ेगा, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। सो रैंक 5 एंड रैंक 6। सो रैंक 5 से रैंक 9 4 का ड्रॉप हुआ, रैंक 6 से रैंक 10 4 का ड्रॉप हुआ, सेम ड्रॉप है, एंड वी हैव सॉल्व दिस सेट। अब रोहन और महक में से इनमें कौन है? कोई भी हो सकता है, सो वी आर नॉट श्योर। सो रोहन और महक, यहां पे महक और रोहन। फाइन, तो ये 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, सिर्फ ये चीज फिक्स्ड नहीं है, अदरवाइज ऑल द थिंग्स आर फिक्स्ड नाउ।
ओके, सो द सेट इज डन, टेबल हमारे सामने है, एक एक करके क्वेश्चंस को चेक करते हैं हम. So let's tackle each of these questions one by one. So looking at the first question, what is the rank of Mehak in the midterm exam? So midterm exam में महक की रैंक क्या है? So महक लास्ट टू में से कुछ भी हो सकती है, that means either rank 5 और rank 6. रैंक 5 और रैंक 6 ऐसा कोई ऑप्शन है तो मार्क कर देंगे, अदरवाइज देखते हैं. सो रैंक 5 और रैंक 6 दो आंसर्स तो मार्क कर नहीं सकते, 8 और 9 ये गलत है, ये गलत है, ये दोनों एक साथ मार्क नहीं कर सकते. सो ऑप्शन ई इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन, हु इज रैंक्ड फर्स्ट इन मिड टर्म? मिड टर्म में रैंक 1 किसका है? सो मिड टर्म रैंक 1 यहां पे है, आई हैव मिथिला. सो मिथिला इज रैंक नंबर 1 इन मिड टर्म एग्जामिनेशन. क्लियर है टेबल से. ओके, सो मिथिला शुड बी द आंसर. मिथिला, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन डी सही आंसर है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ अरमान इन मिड टर्म एग्जाम? सो मिड टर्म में अरमान का रैंक क्या है? सो मिड टर्म अरमान कहां गया? अरमान ये रहा. सो मिड टर्म में अरमान का रैंक है रैंक 7. So answer should be 7, which is option A. Perfect. Next question, if Rohan was not the last in final, Rohan last नहीं है, that means महक last है. महक last है तो रोहन second last हो गया. Then what is the rank? What is his rank in midterm examination? तो अगर रोहन last नहीं है final exam में, तो रोहन की रैंक midterm में क्या होगी? So चेक करते हैं. So if Rohan is not the last, so Rohan will be 9th in final, and hence his rank in the midterm examination will be rank 5. So the correct answer of this question should be rank 5. Option B should be the correct answer. Last question, what is the sum of the ranks of Rohan, Tanya and Mehak in the midterm? Rohan Mehak तो हमें आइडिया नहीं है, but still चेक करते हैं. इंटरचेंजेबल तो हो सकता है, तो रोहन, तान्या, महक की मिड टर्म में रैंक चाहिए. नाउ रोहन एंड महक मिड टर्म में ईदर 5 और 6 इंटरचेंजेबली, तो सम तो सेम रहेगा, राइट. एंड तान्या की है रैंक 10. तो मुझे इन 3 नंबर्स को ऐड करना है, किसी भी सीक्वेंस में ऐड करें, क्या ही फर्क पड़ता है. तो 6 + 5 + 10, आंसर विल बी 21. Okay, so 21 is the correct answer of the last question. Option A is the correct answer, right? So friends, that's all about these 5 questions as well, and that's all about this session to all of you. So these were 2 wonderful sets that we have discussed. Set number 1 में हमने purely calculations को देखा. Set number 2 में there were less of calculations, a little bit more of logic was involved in set number 2, right? सो इस टाइप के क्वेश्चंस या इससे इजी क्वेश्चंस ही आपको नारसी मुंजी एग्जाम में मिलेंगे. दीज क्वेश्चंस वर गुड फॉर योर प्रैक्टिस, राइट? सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस टाइम. आई विल सी यू अगेन. बाय बाय.